number 3. Okay, the next topic is the long form of periodic table. Now what is the long form of periodic table? जो modern periodic law है उसके basis पे जो table बना रखा है, that is the long form of the table, and that table is constructed on the basis of their repeating electronic configuration. Like we had done the electronic configuration, how we find the electronic configuration in chapter 2. So on the repeating electronic configuration means जिनकी configuration same हो जाती है, they are grouped together. Okay, so the long form of table is constructed on the basis of repeating electronic configuration, and in this long form of periodic table, in this periodic table there are 18 groups and 7 periods. So the horizontal rows है जो horizontal rows they are known as periods, and in this vertical column are groups. So in the modern, according to modern periodic law, जो periodic table है, that has 7 periods, means जो horizontal rows है, they are periods, and the vertical columns are groups, and the number of periods are 7, and the number of groups are 18. Okay. Now discussing about the periods. As I told you that there are 7 periods. Okay, जो periodic table है उसमें 7 periods है, and that periods are according to the quantum number. Period according to principal quantum number means 7 periods are there, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and these periods, the first one is n1, second is n2, then n3, and next one is n4, n5, n6, n7. Okay, so the periods are the horizontal rows, and they are 7 in the numbers, and they are numbered according to the principal quantum number. Okay, now if I talk of first period, in the first period where n is equals to 1, we know if n equals to 1, n equals to 0, and then orbital name symbol comes out to be 1s. Okay, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1s एक ऑर्बिटल है, and n orbital can accommodate maximum of 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना? तो 1s की कन्फ्यूजन क्या हो सकती है? एक तो 1s1 मीन्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, या दूसरी कन्फ्यूजन क्या हो सकती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, 1s2. इट मीन्स जो पीरियड विद n1 है, दैट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 एलिमेंट्स. मीन्स जो n1 है इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं. सो फर्स्ट पीरियड जस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स. जो n1 फर्स्ट पीरियड होगा उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे. नाउ नेक्स्ट इज n2. n2 has L0, L1. Here it comes out to be 2s, here it comes to be 2p. With 2s we have just one orbital, and in 2p we have like 3. Okay, so it means 1 and here 3, so total comes to be 4. अगर total 4 orbitals हो गए then it can accommodate 8 electrons. It means जो second period है there can be 8 एलिमेंट्स. उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 8 एलिमेंट्स हो सकते हैं. So like I'll explain to you. It is 2s then 2p. Like okay, here 2s के पास एक ऑर्बिटल है और 2p के पास 3 ऑर्बिटल्स. ओके, सो इट मींस जब n2 होगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बन गए? 4. ओके, और आपको पहले बता रहे थे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, और जहां पे 4 ऑर्बिटल है 4 ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और अभी हम बात ये करते हैं कि जो एक पीरियड है उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं. जैसे n1 है तो उसमें मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं. 2 एलिमेंट्स क्यों हुए? क्योंकि जब 1s में हम फिल करते हैं तो उसको फिल करने के यहाँ पे 2 वेज होते हैं. एक तो ये कि 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा ये कि इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हो. अभी हमने यही कहा कि जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे अरेंज कर रखा है? इन द कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले सेम ग्रुप में इकट्ठा कर रहे हैं. तो जिसमें 1s1 है यहाँ पे है 1s2. ठीक है ना? तो 1s1 वाला अलग एलिमेंट होगा और 1s2 वाला अलग एलिमेंट होगा. ठीक है ना? तो इट मीन्स कि जो n1 है इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 2. इस पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे. अभी जब n2 है इसमें 2s और 2p ये 2 ऑर्बिटल्स बन गए, उसमें सॉरी ये 2 हमारे पास बन गए. 2s में एक ऑर्बिटल है, 2p में 3 ऑर्बिटल.
टोटल ऑफ 4 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। अभी 2s और 2p में इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे भी कर सकते हैं? लुक फॉर इट। 2s1, ठीक है, 2s1 हो गया एंड देन नेक्स्ट विल बी 2s2। उसके बाद क्या आएगा? 2p। देखो 2s हो गया और 2s2 भी हो गया, देन इट विल बी 2s में तो दो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वो है, ठीक है ना, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा दैट विल बी 2p। तो हमारे पास क्या आएगा? 2p1, नेक्स्ट कैन बी 2p2, देन 2p3, 2p4, 2p5 और जो p ऑर्बिटल है इट हैज 3 ऑर्बिटल्स और 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सो देखो अगर पहले हमने s की फीलिंग की कि 2s1 हो सकता है, 2s2 हो सकता है, ठीक है ना, फिर p में किया 2p1, 2p2, देन 3, 4, 5, 6। इट मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन दो ऑर्बिटल्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कितने बेस बन रहे हैं? 8। इट मींस जब n2 होगा तो उस पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 8 एलिमेंट्स। ओके ओके, नाउ द पीरियड विद थर्ड पीरियड मींस n3। अभी हमने किया कि n1 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। जब सेकंड पीरियड होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 8। और थर्ड में भी कितने होंगे? 8। और n4 मींस फोर्थ पीरियड में होंगे 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ में होंगे 18, सिक्स्थ में 32 और सेवंथ में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? देयर विल बी टोटल ऑफ 32 एलिमेंट्स। ओके, नाउ लुकिंग बिफोर गोइंग टू पीरियोडिक टेबल लेट्स हैव लुक्ड एट n इक्वल्स टू 3। जब n 3 होगा देन इट विल बी 3s, 3p, 3d। ओके, बट हमने ये कन्फिगरेशन में देखा था दैट 3s, 3p, 3d, 3d से पहले 4s ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, ठीक है ना। तो जो 3d ऑर्बिटल है इट इज ऑफ हायर एनर्जी, तो हम इसको यहाँ पे n3 के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी थी, वहां पे हमने देखा था दैट 4s इज ऑफ लोअर एनर्जी एंड 3d इज ऑफ हायर एनर्जी। तो जब हम n3 में एलिमेंट्स को कैलकुलेट फाइंड करेंगे तो 3d हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे फिर s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, सो इट कम्स आउट टू बी 4। ओके, सो इसमें भी 4 ऑर्बिटल्स है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 8 एलिमेंट। ओके, जब ये बात का ध्यान रखना है कि जब n3 में एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे तो 3d को कंसीडर नहीं करना है, 3d की एनर्जी हायर है, तो 3d को हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे? n4 के साथ। n4 में भी क्या होगा? देयर विल बी 4s, 4p, 4d, 4f। यहाँ पे भी 4d और जो 4f है इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 4s के बाद हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आता है? 3d और फिर होता है 4p। तो इसमें हम इन तीनों को कंसीडर करके इसके साथ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। बी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द एलिमेंट्स फॉर n, 5, 6 and 7। ओके, now periodic table. Now what is the periodic table? This is the looking how the periodic table looks like. In the periodic table there are total of 18 groups. Total कितने ग्रुप्स हैं? 18 और पीरियड्स कितने हैं? 7। ओके, हमने अभी किया था जब n1 इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। तो एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा। So the element placed over here is hydrogen and the element placed over here is helium. Okay, so and in when n2 there are 8 elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Similarly when n3 में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 8. Okay, and then n4, 5, 6, 7. n4 में 18, 5 में भी 18, but 6 और 7 में the number of elements that are 32. क्योंकि जो 6 और 7 पीरियड है इस पीरियड में देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट बीइंग प्लेस्ड हियर, तो उनको हमने सेपरेटली इस टेबल के नीचे रखा है, ठीक है ना, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर नॉट मैचिंग टू एनी एलिमेंट प्रेजेंट ओवर हियर, तो उन सिंगल प्रॉपर्टीज वालों को हमने अलग रखा है। दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, सो नाउ दिस फर्स्ट 2 ग्रुप्स, जो ग्रुप 1 है दैट ग्रुप 1 इसको क्या नेम दे रखा है? अल्किली मेटल, और ग्रुप 2 को क्या नाम दे रखा है? अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, दिस इज अल्किली मेटल एंड दीज आर अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? एस ग्लोब एलिमेंट। दीज आर एस ग्लोब एलिमेंट।
And now the groups element which are being placed in from 13 to 18, they are known as p block elements. इनको हम कौन सा एलिमेंट कहते हैं? p block. ओके, इट इज नोन एज s block क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों ग्रुप्स में, इन ग्रुप्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर इन s ऑर्बिटल, और इनको हम p block बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें जो लास्ट एलिमेंट है दैट एंटर्स इन द p block. और s और p block इन दोनों को हम इकट्ठे क्या बोलते हैं? s and p block together are known as representative elements. s और p को हम इकट्ठे क्या बोलते हैं? Representative elements. Here in this periodic table the group 17, जो group 17 है उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस. लाइक ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को अल्कालाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 17 इज हैलोजन एंड ग्रुप 18 इज ऑफ नोबल मेटल्स. ओके, नाउ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 टू 12, जो एलिमेंट्स ग्रुप 3 से 12 तक है उन एलिमेंट्स को हम कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. फ्रॉम ग्रुप 3 टू 12 दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और नीचे अभी देखो मैंने अभी एंड दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं then the last electron enters in the d block. And here these two series, these are known as f block elements. इनको हम क्या बोलते हैं? f block elements. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है that enters into the f block. ओके, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन f block में एंटर करे, तो इसी कारण इन दोनों को, क्योंकि ये f block एलिमेंट से लास्ट f block में f ऑर्बिटल में एंटर करता है, that's why they are being placed separately from the this table. Okay, and in this periodic table the most of the elements which are present on the left side पे ज्यादा जो elements present है they are metal, and the elements present on the right side they are non-metals. Okay, and there is a border line that is separating, और इन इसको हम क्या बोलते हैं? इस border line को metal. These all elements which I have written over here, these all are the metals. Means they can behave like metals as well as like non-metals. Okay, so elements towards the left side are metals, and to the right of this they are non-metals. Right में non-metal है और left में metals है, और ये जो zigzag line है it is metal. Okay. Now next is division of elements. Okay. Now I already told you while I show you the periodic table that S block, P block, D block and F block. Now what are their characteristics? जो S block element, S block के में elements होते हैं, in that the last electron enter in the S block. For example, S block का एक element है सोडियम, जिस atomic number is 11. 11 की क्या configuration आएगी? 1s1 and then 1s2, 2s2, 2p6 and then 3s1. So like 2 plus 2 4 6 10 plus 1 11, atomic number 11 means, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है? s ब्लॉक में. तो वो एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो वो s ऑर्बिटल में एंटर करे दे आर नोन एज s ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन इज ns1 और 2. 1 to 2 दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ns1 हो सकता है लाइक ns1. इफ आई टॉक ऑफ z विद 12, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3s2. Now what are the characteristics of these S block elements? These are metals. They have low melting and boiling point. Even their ionization enthalpy is low, and they are very reactive. Okay, sodium is very reactive element, and they form ionic compounds. Ionic compounds like sodium forms Na positive, Cl negative. This is ionic compound. And also they impart color to the flame. Flame को color देते हैं. Now next one is P block. अभी P block कौन से एलिमेंट होंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा? P block में एंटर करेगा. Like if I talk of nitrogen, okay, and the nitrogen has Z equals to 7. Okay, तो इसकी क्या कन्फिगरेशन आएगी? 1s1, 1s2, 2s2 and then 2p3. Okay, means last इलेक्ट्रॉन है जो they are entering in p orbital, so that's why they are known as p block elements. Now the characteristics of the p block elements are that इनमें metals भी होते हैं, non metals भी होते हैं.
ओके। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस ब्लॉक से क्या होती है, ज्यादा। और लाइक ये यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं एंड दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स एंड इवन दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन वन, मींस एक एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है एंड दिस इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे जो मेन शेल है n, ओके, बट डी में जो शेल है दैट इज n-1, मींस जो हमारे पास n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मेन शेल है यहाँ पे, जो डी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं उसकी जो शेल है वो उससे एक कम है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल। इसको कौन सी बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। और एफ ब्लॉक में क्या होगा, देखो एस के साथ एन है, डी कौन से कौन सी शेल में एंटर कर रहा है, n-1, और एफ ऑर्बिटल के साथ कौन सी शेल है, n-2। यहाँ पे n-1 थी इसलिए इसको पेनल्टीमेट बोलते हैं, यहाँ पे n-2 है इसको क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट। ओके, एंड नाउ व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स, और ये भी हमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो शो करता है। एंड इसमें जो कुछ एलिमेंट्स हैं दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट लाइक मैंगनीज, निकल एक्सेट्रा। इसको मैं कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट का क्या काम है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। नाउ दैट एफ ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है एफ ब्लॉक, ओके। एंड व्हाट आर, और जो एफ ब्लॉक में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के टाइम बताया था दैट इट हैज 2 सीरीज, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। और एफ ब्लॉक के क्या कैरेक्टर्स है, ये हैवी मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, दे आल्सो शो वेरिएबल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, एंड दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, मींस कलर्ड आयंस है वो फॉर्म करते हैं ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। So I have included several oxidation states. Now what does this mean? Several oxidation states, like copper is one of the element of the D block. जो copper है, it also shows, it is also like copper positive or copper 2 positive. ठीक है ना? So copper 1, here is copper 2. So these are the 2 different oxidation states of copper. Okay. So similarly, so there are some elements which show डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस यहाँ पे जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं, ओके। एंड आल्सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है दे आल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस इनमें भी +3 या +5 ऐसे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं, ओके। थैंक यू।